morning students, welcome in RPS online classes of subject English. This is the standard 6. In our today's video, I would like to explain you the section 3 and the same poem which I have already explained the keywords and some introduction about the poet. The name of our today's poem is When Sachin Walks Out to Bat by Ruskin Bond. This poem, When Sachin Walks Out to Bat, written by Ruskin Bond, and this is the third video. This is the second video of this chapter. That is this poem which is written by Ruskin Bond. In our previous video, I have already explained you that Ruskin Bond is a famous story writer and poem. Also, he has created several poems, many poems, and he belongs from India. He born in Himachal Pradesh. The name of his village is, I hope you know, but if you forget that, let me explain that. Was born in Basoli, which was in Himachal Pradesh. बसौली नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था और वो still he is alive and at present he is about 92 or 94 years old. तो अभी भी हमारे ये ग्रेट पोएट और राइटर जो हैं, इंडियन पोएट जिनका नाम रस्किन बॉन्ड हुआ, वो अलाइव है. वी फेल्ट प्राउड ऑन हिम. सो लेट्स introducing Ruskin Bond, I would like to explain more about this poem, and in our today's video I would like to explain some summary or few lines about a famous cricket player. I hope you all know his name. He got his name and fame in the field of cricket, and he is also known as the Master Blaster. Just tell me the name. I think you all know. Okay, his name is Sachin Tendulkar. So this poem, When Sachin Walks Out to Bat, is completely dedicated to this famous cricketer whose name is Sachin Tendulkar. And here the poet Ruskin Bond explains the way of his playing, his techniques, his actions in a very impressive manner. So let's learn more about the Sachin Tendulkar, who is also known as the Master Blaster. तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने सचिन तेंदुलकर को, ये पोएम पूरी तरह से सचिन तेंदुलकर के लिए समर्पित है, और रस्किन बॉन्ड ने इस पोएम में उनकी छोटी छोटी बारीकियों को एक्सप्लेन करते हुए काफी अच्छे तरीके से उनके खेलने का तौर तरीका बतलाया गया है कि क्या वो कौन सी वजह है जिनसे वो काफी फेमस हो गए और वो कौन से वर्क्स हैं. बट होप स्टूडेंट्स, one thing I would like to explain you that without doing hard work we can't achieve any name and fame, and we can't get the great success in our life. This also
This lesson also taught in this poem to us. एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स के बिना अपने जीवन में कठिन परिश्रम किए हुए हमें किसी भी सफलता की ऊंचाइयों को हम प्राप्त नहीं कर सकते. So that if you understand this poem, so please do the hard work to get success in your life, and definitely if you set your goal and do the hard work continuously with the complete practicing of several years or many years, definitely you get success in your life. तो कंप्लीट बहुत सालों के प्रयास से, बहुत सालों के अथक प्रयास से, मेहनत से ही आप भी सफलता की उन सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनका एग्जाम्पल्स कई बार मैंने आप लोगों को दिया है. और एक छोटा एग्जाम्पल आज भी हमें इस पोएम के थ्रू मिल रहा है. एंड होप you also follow this rule of the hard work to achieve the success in your goal. You implement this in your life also. तो मैं आशा करूंगी कि आप लोग इस पोएम से ये लेसन लेके अपने लाइफ में भी काफी सफलता हासिल कर सकते हैं और कई सालों के मेहनत से. बट डू द हार्ड वर्क फर्स्ट. लेकिन पहले उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करने पढ़ेंगे. Okay, now let's continue the poem. This poem is dedicated to Sachin Tendulkar. As you all know that he is a famous cricketer. He loves cricket from his childhood. वो बचपन से ही क्रिकेट प्रेमी थे. By the practice of many years. तो क्या उनको खेल जगत में इतनी बड़ी सफलता इतने कम उम्र में ऐसे ही मिल गया? सो के सपने देखने से नहीं. उन्होंने उनका एक पैशन था, वो जुनूनी थे, काफी पैशनेट थे क्रिकेट को लेके. और क्रिकेट जो कि उनका लाइफ था जिसको वो बहुत लव करते थे. बाय द प्रैक्टिस ऑफ मेनी इयर्स he got the name and fame in the field of cricket. Here poet also explains his techniques, his graceful balanced manner, his complete focus on the ball. और वो कंप्लीट खेल के मैदान में जब उतरते थे बैटिंग करने के लिए तो कंप्लीट पिच पे उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को वेलकम करते हुए, ऑडियंस को धन्यवाद देते हुए, सिर्फ और सिर्फ वो कंप्लीट फोकस होते थे आते हुए बॉल की तरफ. जो बॉल उनकी ओर आ रहा है और उनका पूरा ये लक्ष्य होता था कि इस आते हुए बॉल को मैं ऐसा हिट करूं, ऐसा तेज बैट घुमा के वो मारते थे कि ऑडियंस lost their complete patience and they excited, thrilled and happy and so their joys. ऑडियंस इतने एक्साइटेड और हैप्पीनेस हो जाते थे उनके इस हिटिंग बॉल को देखते हुए कि उनके चौके छक्के से ऑडियंस अपने कंट्रोल को, अपने वॉइस रेजिंग कंट्रोल खो देते थे. और इस तरीके से यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है डेफनिंग साउंड. मीन्स वो हजारों हजार दर्शकों के बीच की साउंड जो होती थी, वो लार्ज क्राउड जो उनके चौके छक्कों को देखते हुए वो इतनी ज्यादा वॉइस रेज हो जाती थी, ऑडियंस खुशी से झूम उठते थे और इतने जोर जोर से उनका अभिनंदन करते थे, अभिवादन करते हुए चीखते चिल्लाते खुशी से कि वो साउंड फ्यूअर पिच तक चला जाता था. इट मीन्स दैट कह सकते हैं कि बहरे कर देने वाली साउंड वहां पे गूंजने लगती थी. सारे ऑडियंस खुशी से एक्साइटेड होते थे. मेनी वॉइसेस रेज टू द फ्यूअर पिच. हिज एक्शंस आर बैलेंस्ड एंड ग्रेसफुल. और हियर पोएट आल्सो एक्सप्लेन्स द स्टाइल ऑफ हिज हिचिंग शोल्डर. मीन्स जैसे ही वो पिच पे पहुंचते थे थोड़ी सी अपने
शोल्डर्स को रिलैक्स करते हुए बैट घुमा के एक नजर दर्शकों को देखते थे. दिस ऑल्सो शोज हाउ ही कॉन्फिडेंटली गो स्टेप आउट टू द बैटिंग. और ये उनकी कॉन्फिडेंस शो करता था कि कैसे वो बैटिंग के लिए कॉन्फिडेंटली अपने वर्क के लिए जा रहे हैं. कंप्लीट डिवोशन टू हिज वर्क. सो दिस is also a way to achieve the success. If you have the confidence in yourself to do the best, you can definitely do the best in your life. अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे अगर आपको भरोसा है, तो श्योर है कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हो सकते हैं. और अपने कठिन परिश्रम को करते हुए आपकी फोकस आपका सेट किया हुआ गोल होना चाहिए. तो ऐसा ही कुछ सचिन किया करते थे. He completely focused on his ball and the ball and gives to a handsome cloud. और आते हुए बॉल को वो इस तरीके से बैट को घुमा के मारते थे कि वो इतनी दूर जाता था कि चौके और छक्के की तो बौछार कर देते थे वो. तो उनकी यही सब स्टाइल, यही तौर तरीके, यही कंप्लीट फोकस होना अपने गोल पे, ये सब दर्शकों को काफी लुभाया करता था. और दिस गेट फाइनली हिम द सक्सेस एंड रिच हिम टू द नेम एंड फेम इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट एंड ऑल्सो नोन एज द फेमस मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर. तो मैंने आपको बताया हाउ Ruskin Bond explains the all techniques and actions played in the field of cricket by the Sachin Tendulkar and how he confidently welcomed the audience and balls and hit the balls to the runs on the sixes and ओस. और चौके और छक्के का जो है वो बौछार होने लगती थी, रनों की संख्या बढ़ती चली जाती. और इस तरीके से ये सचिन तेंदुलकर जो फेमस क्रिकेट प्लेयर हैं, बहुत कम उम्र में और बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल किया. तो ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है बच्चों, ये बहुत दिनों की प्रैक्टिस है. और इस तरीके से इस प्रैक्टिस को देखते हुए मैं होप करती हूँ कि आप भी अपने लाइफ के गोल को सेट कीजिए और ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सालों तक प्रैक्टिस करते रहें, जिनसे अथक प्रैक्टिस से यू कैन डेफिनेटली विन द सक्सेस इन योर लाइफ एंड अचीव a great success and name and fame in your career and in your life. Hope you all understand. तो मैं समझ रही हूँ कि इस पोएम को आप समझ रहे होंगे, बट बिफोर stop my video, I would like to explain you that you first thoroughly read this poem line by line and write this summary in your fair notebook. Thereafter, if you have any problems or any queries, then you can ask it in the evening query section, that is the from the 7 p.m. to 8 p.m. Hope you all understand. Till then, thanks for the next video.